Assalamu alaikum. Welcome to 101 Incredible Women CEOs of Pakistan. Today we have Rizwana Anjum with us. ये बहुत बड़े बड़े काम कर रही हैं और बहुत ऐसे काम कर रही हैं जिससे हमारे मुल्क को कौम को बहुत फ़ायदा है. आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि ये क्या कर रही हैं, ये कैसे कर रही हैं और किस किस के साथ मिलके कर रही हैं. Assalamu alaikum Rizwana. Welcome to 101. Thank you very much. So your work is very unique. And only a brave-heart lady can do that. Honestly, you are working with the government and making policies and helping them to innovate these things. So how did you start it? Well, thank you very much. I'm very much thankful to you for inviting me here today for 101 Incredible Women. So basically, I started my professional career from Ministry of Environment in early 2004-5. So it was the time when there was not much awareness about environmental issues, about the climate change issues, about the gender-related perspective. So at that time, mostly in government sector, all these things were taken as not very seriously, and they were not the sensitive issues of that time when I joined government sector, especially in Pakistan. In Pakistan, yeah, and I joined Ministry of Environment now, which is Ministry of Climate Change. At that time, it was Ministry of Environment. So I joined as environmental coordinator. I was the first woman who joined Ministry of Environment who was having proper qualification in the environmental sciences. Oh, wonderful. Before that, all the employees of Ministry of Environment were not from the environmental sciences background. They were for other multiple backgrounds. So I was the first who joined as a with a recognized degree of environmental sciences. So then when I joined over there, I came to know that there are a lot of many things which should be integrated with the environmental setups, with the environmental issues and the environmental concerns which are globally and internationally are there. So it was very difficult and it was very hard time for me to take up those issues in a particular government sector where there was no much awareness, where there was no policy initiatives on those, when it was not taken seriously. People even they were not talking about it. Yes, people were not ready to talk about it. Even when I have experienced such things as well. When I met the senior of government officers, or I just had a meeting with them to discuss about the environmental issues, to discuss my viewpoint over some issues and the policy initiatives, they were of the way, oh, लोगों के पास तो खाने को पैसे नहीं है, लोगों के पास रहने के लिए कपड़ा नहीं है, लोगों के सर पे छत नहीं है, आप एनवायरनमेंट की बात करती हैं, आप कहाँ से आई हैं, किस दौर की बात कर रही हैं, पाकिस्तान में ये कुछ नहीं हो सकता. Yes, they are the part of environment. तो ये वो एक एटीट्यूड था, ये वो एक माइंडसेट था जिसको मैंने जब ऐसे प्रोफेशनल ज्वाइन किया अपना करियर, तो उस वक्त मुझे ये चीजें फेस करना पड़ी. These were the challenges because एक एनवायरनमेंट पे लोग बात करना है एक फन, एक जोक समझते थे कि आप किस चीज पे बात कर रही हैं, ये तो कोई पाकिस्तान का ये मसला नहीं है. और फिर उसके बाद लाइक ये कि मैंने हिम्मत नहीं हारी, किसी भी उस पे स्टेज पे बहुत ज्यादा मुझे चैलेंजेस, बहुत ज़्यादा जो है हर्डल्स वो फेस करना पड़ी. लेकिन ये कि मैंने बहुत से मौक़ों पे इवन मेरी फैमिली ने मुझे जो है ये कहा कि तुमने कौन सा प्रोफेशन अडॉप्ट कर लिया है, ये एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज जिन चीज़ों पे तुम काम करना चाह रही हो, और ये तो प्योरली तुम्हें जाके मेल्स के साथ काम करना पड़ता है, तुम्हें फील्ड में जाके काम करना पड़ता है, और इतनी बातें भी लोग तुम्हारे सेक्टर को सीरियस नहीं लेते, तो इसको छोड़ के कोई और चीज़ कर लो. ज़ूलॉजी बॉटनी मेरा बैकग्राउंड था, ज़ूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, तो आई वाज टोल्ड कि आप ये छोड़ दो एनवायरमेंटल साइंसेस और तुम किसी और सेक्टर में आ जाओ और एज ए टीचिंग जो है अपना करियर स्टार्ट कर लो, कॉलेज को में पढ़ाना शुरू कर दो. कुछ इस टाइप की चीज़ें मेरी फैमिली की तरफ से, क्योंकि हर रोज़ कोई ना कोई इसी तरह का चैलेंज मुझे फेस करना पड़ता था, और डेफिनेटली फॉर द टाइम बीइंग मैं बहुत डिसअपॉइंट हो जाती थी. लेकिन फिर एक वो होप थी, एक वो मोटिवेशन थी जो हर रोज फिर मुझे उठाती थी, नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे इस सेक्टर को आगे लेके जाना है. फिर मैंने फेडरल गवर्नमेंट के बाद मैंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ज्वाइन किया 2006 में irrigation department. That was another challenging phase of my professional career. Irrigation department,
एक प्योरली मेल डोमिनेटेड डिपार्टमेंट, और स्पेशली डील भी उनसे करना पड़ता है जिसमें दे डोंट बिल्कुल। वांट टू लिसन, Yes. एंड स्पेशली अगर वुमन हो तो फिर तो डेफिनेटली तो एक मेल डोमिनेटिंग इदारा, और जहाँ पे अगेन इरिगेशन डिपार्टमेंट वो महकमा था जहाँ पे आई वाज द फर्स्ट वुमन हु स्टार्टेड माय करियर एज ए डेप्यूटी डायरेक्टर एनवायरनमेंट एंड सोशल मैनेजमेंट। और शुरू में एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट बताना चाहूंगी कि मेरा ऑफिस हुआ करता था लाहौर में, नहर पे, मुगलपुरा वाली साइड पे, वहाँ पे सारे साथ इरिगेशन के ही बाकी महकमे हैं। तो मैंने शुरू में जब ज्वाइन किया तो साथ वाले जितने भी ऑफिसेस थे इरिगेशन के, वहाँ के एसडीओज, एक्सियंस, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, वो आते होते थे मेरी ऑफिस, और मैंने पूछना अपने असिस्टेंट से कि कौन है, मैडम मुफला आए हैं, अच्छा जी सर आप आइए, क्या काम है आपको? तो उनका जवाब होता था, हमने सुना था यहाँ पे कोई इरिगेशन डिपार्टमेंट में भी कोई खातून आई है, अच्छा कोई खातून ऑफिसर ने आके ज्वाइन किया है, हम सिर्फ आपको देखने, आपसे मिलने आए हैं। तो ये वो टाइम था कि मतलब उनको हैरत होती थी कि इरिगेशन डिपार्टमेंट में आज तक कोई खातून ऑफिसर नहीं आई। लाइक सीनियर ब्यूरोक्रेट्स माइट भी होती हो, एडिशनल सेक्रेटरी या स्पेशल सेक्रेटरी वगैरह के ओहदे पर, लेकिन ये कि एज ए टेक्निकल जो है कैरियर के तौर पर किसी खातून ने इरिगेशन डिपार्टमेंट को मुझसे पहले ज्वाइन नहीं किया था। आई वाज अगेन द फर्स्ट वुमन हु ज्वाइन एज ए डेप्यूटी डायरेक्टर एनवायरनमेंट, और मैंने वहाँ पे फिर एनवायरनमेंट पे काम किया। और इरिगेशन डिपार्टमेंट यू नो कि पूरे पंजाब में एक्सटेंसिवली फैला हुआ है, रावलपिंडी से लेकर रहीम यार खान और सादकाबाद तक, और मेरा सारा काम फील्ड का होता था। अब वो एक अगेन इट वाज वेरी चैलेंजिंग कि जो मुझे बहुत सी हर्डल्स मुझे फेस करना पड़ी। लाइक पीपल वर नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी, जो ऑफिसर्स थे इरिगेशन के वो ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि मैं जो है वो अपने ऑफिस से निकल कर फील्ड में जाकर भी काम करूंगी। उनके लिए ये बिल्कुल नई और बहुत अचंभे की बात थी कि एक बंदी अपने ऑफिस से उठ के, लाहौर में पली बड़ी, लाहौर में सारी उसकी एजुकेशन, और लाहौर से उठ के वो सादकाबाद और रहीम यार खान और उधर से बहावल नगर, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़ जैसे इलाकों में जाके फील्ड वर्क कर रही है, और वहाँ के किसानों को इकट्ठा करके उन्हें इन्वायरमेंट की ट्रेनिंग दे रही है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। एंड यू प्रूव इट। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इधर से रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल वाला एरिया जो है, यहाँ पे स्मॉल डैम्स इरिगेशन डिपार्टमेंट बनाता है, तो यहाँ से लेकर मैंने थ्रू आउट पंजाब डीजी खान और मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर जैसे इलाकों में मैं गई, मैं सादकाबाद और रहीम यार खान तक गई, और मैंने तमाम इलाकों में ट्रैवल किया, उनकी ख़वातीन फार्मर्स के साथ मैंने कम्युनिकेट किया, जो जितने भी फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस होती थी उनको ट्रेनिंग्स दी इन्वायरमेंट पे, जितने भी इरिगेशन के ऑफिसर्स होते थे, गवर्नमेंट अफसरान, इनके जो है चीफ इंजीनियर से लेकर सब इंजीनियर्स तक, जितने भी फील्ड प्रैक्टिशनर्स थे, उन सबको इकट्ठा करके उनकी ट्रेनिंग्स करवाई कि इन्वायरमेंटल इश्यूज इस तरह से होते हैं, आपने ऐसे इनको टैकल करना है। सो दैट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करना। लग रहा है कि वाकई क्योंकि ये वो वाले एरियाज हैं जहाँ पर ख्वातीन अकेले भी बाहर नहीं निकलती। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ जाके फील्ड में काम करना, एंड स्पेशली ऐसे लोग जो कि इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, उनको अपनी बात समझाना, ये एक बहुत बड़ा काम है। और इससे मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि अगर खातून, कोई भी लड़की, कोई भी ये चाहे कि वो कोई काम करना चाहती है, तो वहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। आप हमारे लिए एक रोल मॉडल है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, जो आप सोचें आप कर सकते हैं। बिल्कुल, आप पे पैशन होना चाहिए अपने प्रोफेशन को। लाइक कि गवर्नमेंट सेक्टर में आमतौर पर ये समझा जाता है कि गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों को फैसिलिटीज मिल जाती हैं, मराहत मिल जाती हैं, तो वो सिर्फ अपनी नौकरी को एंजॉय कर रहे होते हैं। खास करके फीमेल्स जो हैं वो सेक्रेटेरिएट से और लाहौर में जिनकी पोस्टिंग होती है वो इससे के अलावा निकलने को तैयार नहीं है। तो आई जस्ट चेंज दैट माइंडसेट, और मैंने ये ट्रेंड जो है वो अपने सेक्टर में क्रिएट किया कि खवातीन भी जो है वो फील्ड में जाकर अपने मेल ऑफिसर्स, जो अपने मेल कोलीग्स हैं, उनके साथ काम कर सकती हैं और उनसे अच्छा काम कर सकती हैं, और उतनी अच्छी परफॉर्मेंस वो भी दे सकती हैं जितना कि कोई भी जो है वो मेल अपने डिपार्टमेंट में जो है वो काम कर रहा है। बहुत ज़बरदस्त। तो अब आपके क्या गोल्स हैं? मैंने इरिगेशन डिपार्टमेंट के बाद फिर मैं कुछ अरसा मैंने ज्वाइन किया अर्बन यूनिट में भी मैंने इसी तरह की मोरलेस काम था,
और वर्ल्ड बैंक फंडेड एक प्रोजेक्ट था, उसमें मैंने काम किया 5 साल तक के लिए। अच्छा। और फिर अगेन उसमें वर्ल्ड बैंक की जो पॉलिसीज थी और वर्ल्ड बैंक के जो जितने भी उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं सॉरी इन्वायरमेंट और सोशल सेफगार्ड से रिलेटेड, उनकी मैंने कंप्लायंस करवाई, पर्टिकुलरली विद रिगार्ड ऑफ जेंडर एंड वुमेन एम्पावरमेंट। और फिर मैंने 5 साल सक्सेसफुली उस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से रन किया। और ये एक अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि मेरे प्रोजेक्ट को पंजाब सिटीज गवर्नेंस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट था विच वाज फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक, और इस प्रोजेक्ट के इन्वायरमेंटल और सोशल सेफगार्ड्स को वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो है एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट में काम करने पे अवार्ड दिया गया था। और यस, थैंक यू वेरी मच। और फिर उसके बाद अभी करंटली मैं लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ काम कर रही हूँ। और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी मैं अगेन आई एम वर्किंग विद वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट पंजाब सिटीज प्रोग्राम के साथ में काम कर रही हूँ। और इस प्रोजेक्ट में भी मेरा जो गोल है वो इन्वायरमेंट और सोशल मैनेजमेंट, जेंडर एम्पावरमेंट और क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन से रिलेटेड है। और ये सब चीजें एक दूसरे से लिंक्ड हैं। एक दूसरे से लिंक्ड हैं, बिल्कुल। आप लाइक आप देखिए कि इन्वायरमेंट जो है that is environmental sciences जो है वो that is very much related in with the climate change and climate change impacts are the climate change events which are going on। आप देखिए जितने भी climate change events हो रहे हैं, floods आपके हैं, आपके हीट वेव्स ज्यादा आ रही हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ये सारी चीजें इन्वायरमेंट के साथ रिलेटेड हैं। तो हम इनके लिए क्या कर रहे हैं? इसके लिए मैं आपको ये बताऊं कि गवर्नमेंट के लेवल पर जो चीज़ें इस वक्त हो रही हैं, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी जो है वो लॉन्च की है। अच्छा। अब क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी में हमने वो तमाम चीज़ें जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज इवेंट्स में इजाफा हो रहा है पंजाब में, पाकिस्तान में, उनको टैकल करने की कोशिश की है। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर हम ये देखें कि जो टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है, अभी अब देखिए सितंबर का महीना शुरू हुआ है, तो अगले 1-2 महीनों में हमें शदीद स्मोक का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल। तो उसके लिए हमने क्या इकदाम लेने हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है उसको के लिए क्या किन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इंडस्ट्रीज जो है उनके लिए क्या चीज़ें चाहिए, फिर जो है आपने जितने भी हमारे ये प्लांटेशन जो है, एफॉरेस्टेशन पर्टिकुलरली हमारी जो अर्बन फॉरेस्ट्री है, इस पे हमें किस तरह से फोकस करना है, कैसे हम अपने शहरों में फॉरेस्ट्री का और प्लांटेशन के कंसेप्ट्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं। फिर इसी तरह से हमारे अनफॉर्चुनेटली जो है पाकिस्तान में इस वक्त तक जितने हमारा वेस्ट वाटर है, जो शहरों का गंदा पानी है, म्यूनिसिपल वाटर है, उसको ट्रीट करने के लिए कोई भी इंतजाम खातर मौजूद नहीं है किसी भी शहर में। चंद एक ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं बट वो नाकाफी हैं बढ़ती हुई आबादी के लिए। तो हमारे जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के सिस्टम्स हैं वो हम शहरों में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के तहत। फिर इसी तरह से आप देखिए कूड़ा जो है वो लोग कूड़े को आग लगा रहे होते हैं, कूड़ा बाहर ओपन पड़ा हुआ होता है हर जगह पे आप देखिए, तो उसमें से जो गैसेस इमिट हो रही होती हैं उसकी वजह से एक तो स्मोक में भी इजाफा होता है, आपकी जो एयर क्वालिटी है शहर की वो डिटीरियोरेट होती है। तो वो सारे जो एमिशंस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम मुख्तलिफ जो है वो ऑप्शंस गवर्नमेंट को दे रहे हैं और कि आप ये चीजें करें, आप उनको हेल्प कर रही हैं पॉलिसी मेकिंग में। उन जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज में इन चीज़ों को इंटीग्रेट करवाने की कोशिश कर रही हूँ, ना सिर्फ ये सारी चीज़ों को बल्कि इसके साथ साथ जो खवातीन का रोल है उसको जो है मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिसीज बने, जितने भी गवर्नमेंट लेवल पे इनिशिएटिव्स दिए जाएं, जितने भी प्रोजेक्ट्स आए वो जेंडर एंड सोशल इंक्लूसिवनेस के साथ आए। उसमें जेंडर एंड सोशल इंक्लूजन का जो पहलू है उसको बहुत ज़्यादा उसको अहमियत दी जाए, क्योंकि ये हमारा बहुत सेंसिटिव एरिया है। अगर हम खवातीन के जो से रिलेटेड अपने प्रोजेक्ट्स को खवातीन से रिलेटेड और जो स्पेशल ग्रुप्स हैं लाइक पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं, लाइक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, पीपल इन ओल्ड एज हैं, अगर हम उनकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी पॉलिसीज़, अपने प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन नहीं करेंगे तो हमें आने वाले सालों में बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो आई एम गिविंग माई प्रोविजंस, माई इंसाइट टू गवर्नमेंट दैट हाउ दे कैन मेक द जेंडर एंड सोशल इंक्लूसिव पॉलिसीज़। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर जो मैं आपको बताना चाहूँगी इस हवाले से वो ये है कि अभी रिसेंटली हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए SOPs बनाए हैं। उन SOPs में हमने ये जो है जेंडर एंड सोशल इंक्लूजन की बात हमने की है कि किस तरीके से लोकल गवर्नमेंट अपनी म्यूनिसिपल सर्विसेज में वाटर, सैनिटेशन
और बाकी जितने भी लोकल गवर्नमेंट म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसमें जेंडर एंड सोशल इंक्लूजन को कैसे पॉसिबल बनाया जा सकता है, इस पे बाकायदा SOPs जो है वो बनाने में मैंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है एज एन ऑथर। सेकेंडली जितने हमारे ये सैनिटरी वर्कर्स हैं, सैनिटरी वर्कर्स जो सैनिटेशन का काम करते हैं, कॉकरोच जिनको कहते हैं, स्वीपर्स हैं, क्लीनिंग का काम करते हैं, या जो सीवरेज सिस्टम में अंदर जाके तो उसकी क्लीनिंग वगैरह करते हैं, तो उनकी जो हेल्थ और इन्वायरमेंट और उनके ऊपर जो बुरे असरात मुरतब होते हैं जहरीली गैसों की वजह से, बाज़ दफ़ा अमवात भी हो जाती हैं सैनिटरी वर्कर्स की, उसके लिए SOPs जो है वो डिज़ाइन किए हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। और ये भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, लोकल गवर्नमेंट का। और इसके साथ साथ जो है एक और बहुत अहम चीज़ जिस पर जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी जो आपने देखा होगा कि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं वहाँ पर मेल लेबर के साथ साथ खवातीन लेबर भी काम कर रही होती है, जो पर्टिकुलरली जो उसके स्टोन क्रशिंग वगैरह का काम कर रही होती है, स्टोन क्रशिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, तो उनके लिए, उनकी सेहत के लिए, उनकी इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए कोई SOPs नहीं थे। सो फॉर द फर्स्ट टाइम आई आल्सो डिजाइन SOPs for those women laborers and the workers who are working at the construction sites of civil works. तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। तो ये अवेयरनेस उनको भी दी जाएगी। बिल्कुल, इस पर उनको अवेयरनेस भी दी है। इसके साथ साथ जो खवातीन इस तरह से काम कर रही होती हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, उनकी जो है सेक्सुअल हरासमेंट से रोकने के लिए तरबियत जो है किस किस्म की दी जानी चाहिए कॉन्ट्रैक्टर्स को, लेबर को और इर्द गिर्द की कम्युनिटीज़ को, उस पर भी काम किया है, उस पर भी SOPs बनाए हैं ताकि जो है ये सारी चीज़ों को इंश्योर कराया जा सके। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इसके साथ साथ आपका एक बहुत एक सॉफ्ट हार्ट भी है जिसकी वजह से आप पोइट भी हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत सी पोइट्री लिखी हुई है, तो क्या उसकी कोई बुक्स वगैरह आ रही हैं आपकी? जी बिल्कुल। मेरी शायरी का में जो है कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नाम तो नहीं हूँ मैं शायरी के हवाले से, लेकिन ये कि मुझे लिखने का शौक़ है। मेरी पहली किताब जब मैं शुरू में मैंने लिखना शुरू किया था, मेरी पहली किताब 2008 में छपी थी शायरी की, जो कि गज़लों और नज़मों का मजमुआ है। दूसरी किताब मेरी 2009 में आई थी। अच्छा जी, 2 किताबें मेरी गज़लों और शायरी की, गज़लों और नज़मों के मजमूए पर मुश्तमिल 2 किताबें मेरी छप चुकी हैं। एक कंगन के नाम से जो मेरी पहली किताब थी, और मेरी दूसरी किताब मोहब्बत शर्त है के नाम से 2009 में आई थी। तो ये 2 किताबें मेरी छप चुकी हैं। अभी रिसेंटली मैं एक अफसानवी मजमूआ तरतीब दे रही हूँ, तो वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द वो छप जाएगा। कामों में आपके पास टाइम निकल आता है अपने लिए। शायद मुझे लगता है कि जो जिंदगी में मोटिवेशन है, जो एनर्जी है, वो इन सारे कामों को साथ लेकर चलने से ही आती है कि साथ साथ सारी चीज़ें जो है वो बैलेंस आपकी पर्सनालिटी को करती हैं और आपको एनर्जी और मोटिवेशन मिलती है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये आपका जो काम है एक तो यूनिक है, बहुत से लोग कर नहीं रहे, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होने वाला है अगर ये पॉलिसीज़ जो हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हमें बहुत सी ऐसी चीज़ों का हमें पता चला, और मुझे उम्मीद है बाकी सबको भी, कि जिसके बारे में हम भी नहीं सोच रहे थे। थैंक यू वेरी मच। और जिस वे से आप कर रही हैं वो रिमार्केबल है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।